Hello students, in last class we have seen theory of demand in detail. In that we have discussed individual demand function, market demand function, and we have seen all the determinants of individual demand in detail. So what are the determinants? I think you all know very well that are quantity demanded of of commodity X. P X is the own price of commodity. Py price of related goods. Y consumers good. T consumer taste and preference. E consumers expectation. So rather that today we are going to discuss law of demand. Okay, states that, let's start this topic, states that other things remaining constant, there is an inverse relationship between quantity demanded and or price of the commodity. So there is a inverse relationship between both price and quantity demanded. मीन्स जब हमारी जो प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांडेड से. लाइक एक्सप्लेनेशन, इन द एक्सप्लेनेशन वी हैव सीन डिमांड शेड्यूल, डिमांडेड शेड्यूल एंड डिमांडेड कर्व ऑल्सो. एंड इन द determinants of demand we have seen that price can change but other things remain constant. Like this is in the law of demand. जैसे कि PR, T, Y and E, these all will be constant. Okay, what's the meaning of PR? I have told you, own price of commodity. This is a price of commodity, and PR is price of related goods. X is consumers income should be constant, consumer taste and preference should be constant, and consumers expectation should also be constant. ओनली वॉट चेंज? ओनली प्राइस चेंज. प्राइस चेंज होगा. जब प्राइस राइज होगा तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, जब प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी. सो दिस शोज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. यहाँ पे टेबल पे भी आप देख सकते हो, पी एक्स इज़ 10. जब पी एक्स 10 प्राइस 10 था तब हमारी क्वांटिटी डिमांड 100 थी. जब हमारा प्राइस लेस हुआ 9 पे आया तो हमारी डिमांड बढ़ गई. जब वो और लेस हुआ तो वी डिमांड मोर. लाइक जब वो 8 पे आ गया तो हमने 2200 क्वांटिटी डिमांड की. ठीक है. सो दिस शोज़ द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. सो लेट्स सी द assumptions of law of demand. So assumptions of law of demand is that same, only first point is price of the commodity can change, and after that other is assumption is price of related goods become constant, income constant, taste and preference should be constant, and their expectations should also be constant. So these are the assumptions of law of demand. Now we will see why the demand curve sloped downward. There are some points regarding this topic. First is law of diminishing marginal utility. This law of diminishing marginal utility we have seen detail in previous chapter, that more and more commodity is going to consume, marginal utility decline. जब ज़्यादा से ज़्यादा हम commodity consume करेंगे, जो हमारी marginal utility है वो decline होती जाएगी. मतलब अगर हम किसी एक चीज़ को लगातार खाते रहेंगे तो हमें हमारा उससे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है ना. दैट इज़ कॉल्ड अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. या लाइक हम एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम हमेशा खा रहे हैं. लाइक बटर स्कॉच मुझे पसंद है तो डेली मैं बटर स्कॉच खा रही हूँ, तो फिर मेरी वो जो इंटरेस्ट है, मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी. सेकेंड इज़ इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट मीन्स refers to a effect on quantity demanded when real income of the buyer changes owing to change in price of the commodity. Like जब price down होता है, रियल इनकम अगर हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी डिमांड जो है वो भी एक्सपैंड होगी, क्योंकि जब प्राइस लेस है हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, हमारी इनकम हमारे पास है. तो व्हेन प्राइसेस आर लो तो हमें एक मौका मिल जाता है कि वी कैन मोर डिमांड, तो हमारी डिमांड एक्सपैंड हो जाएगी. नाउ थर्ड इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज़ ऑल्सो रेफर टू
that substitution effect refers to the substitution of one commodity from the other when it becomes relatively cheaper. अगर हमारे पास substitution commodity है, अगर वो less price में हमें मिल रही है तो हमारी जो demand है वो बढ़ जाएगी. Now fourth point is size of consumer group. अब जो साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप हम देखें तो अगर हमारा प्राइस लेस है तो मैनी मोर बायर्स कैन एफर्ड टू बाय इट. तो जब अगर हमारा प्राइस हम कम देंगे किसी कमोडिटी का तो बहुत सारे बायर्स हमारे पास मार्केट में आ जाएंगे उसको ख़रीदने के लिए. सो अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्सपैंड. तो डिमांड क्या होगी कमोडिटी की, वो एक्सपैंड हो जाएगी. Now fifth point is different uses. A good have several uses. अब एक गुड के बहुत सारे uses हो सकते हैं. For example, milk is used for making curd. मिल्क को हम कर्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, चीज़ के लिए एंड बटर के लिए यूज़ करते हैं. इफ़ अ प्राइस ऑफ मिल्क डिक्रीज, अगर मिल्क का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो इट विल पर टू डिफरेंट यूजेस, इट विल इफेक्ट टू डिफरेंट यूजेस ऑल्सो. अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर मिल्क एक्सपैंड. तो इसी तरीके से डिमांड ऑफ मिल्क एक्सपैंड हो जाएगा. जब मिल्क का प्राइस लेस होगा तो अदर कमोडिटी का प्राइस भी लेस होगा. ठीक है ना. नाउ वी विल सी आफ्टर सीइंग दिस टॉपिक why the demand curve slowed downward, we will see the next topic, that is exceptions to the law of demand. There are some exceptions related to price and demand. See first articles of distinctions. What is the articles of distinction? These goods are demanded only because their prices are very high. These goods are related to luxurious goods. Like luxurious चीज़ों की अगर हम डिमांड करते हैं तो जब इनका प्राइस हाई होता है then we are going to demand these type of goods. Like प्रीशियस डायमंड. अगर हमें प्रीशियस डायमंड ख़रीदना है तो उसका जो प्राइस हाई होगा तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स थिंकिंग इज़ टू गो फॉर डायमंड बिकॉज दे थिंक दैट अगर किस चीज़ का हाई प्राइस है तो वो हमारे एक स्टैंडर्ड पे अफेक्ट करता है. नेक्स्ट इज़ विंटेज कार. विंटेज कार इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस. Now see the second point, giffen goods. Giffen goods are highly inferior goods. It means they are low level of goods. So its income effect have a negative relationship between demand and income. डिमांड और इनकम में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है. अगर इनकम लेस होगी हमारी, ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे कमोडिटीज़ का. क्यों, किसका? अगर हमारी इनकम लेस होगी तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे इन्फीरियर गुड्स का. ठीक है. अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी तो हम डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे इन्फीरियर गुड्स का. क्यों? जब हमारी इनकम अच्छी हो जाएगी तो हम लो लेवल के गुड्स पे क्यों जाएंगे, हम अच्छे लेवल के गुड्स को ख़रीदेंगे. ठीक है ना. एंड बट देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस. अगर प्राइस हाई होगा तो हमारी डिमांड जो इन्फीरियर गुड्स की होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जब प्राइस ज़्यादा का हमें मिलेगा तो हम लोग लो लेवल की चीज़ों पे लाइक इन्फीरियर गुड्स पे जाएंगे. लाइक जब प्राइस डाउन होगा तो वी विल आर डिमांड ऑल्सो कम डाउन, हम अच्छी चीज़ों के ऊपर जाएंगे. ठीक है ना. जब हमें कम प्राइस पे अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो वी शुड नॉट गो फॉर द इन्फीरियर गुड्स. सो देयर इज़ अ positive relationship between price and demand and negative relationship between income and demand. So see here, third is irrational judgment. Somewhere कुछ consumers की जो judgment होती है वो irrational होती है. Like see here, law of demand feels when consumer judge the quality of a commodity by its price. Mostly consumer की mentality क्या होती है, वो उसकी quality उसके price से judge करता है. For example, अगर कहीं पे भी किसी showroom पे अगर कोई भी suppose हम रेबॉक का शोरूम में जाते हैं तो उन्होंने अगर बाहर अपनी वो सेल लगाई हुई होती है तो हमारी मेंटालिटी, हमारे कंज्यूमर की मेंटालिटी क्या होती है कि ये मतलब गुड्स सही नहीं है, दैट्स वाई दे आर नॉट गोइंग टू बाय दैट गुड्स, कि वो अब जो सेल में बाहर निकाली हुई है चीज़ वो ठीक नहीं है. तो that type of goods are organic products and non-organic products. Some goods are organic and some goods are non-organic. तो मोस्टली कंज्यूमर्स की जो जजमेंट होती है वो इरेशनल होती है. और इन द केस ऑफ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, जो हमारा डायग्राम है लॉ ऑफ डिमांड होती है वो पॉजिटिव में इस तरह बनती है. फर्स्ट डायग्राम अगर आप देखें तो फर्स्ट डायग्राम में उसकी स्लैंटिंग जो लाइन है वो लेफ़्ट टू ऊपर से नीचे बनी हुई है. एंड सी हियर एंड द नेक्स्ट डायग्राम, उसमें
जो स्लैंटिंग लाइन है दैट शुड बी in a opposite direction, that is negative relationship between price and demand. So अगर exceptional case में होगा तो first diagram we will draw, and in the second case we will draw the second diagram, like there is a inverse relationship between demand and price. So today this topic has completed, and we'll continue the next topic in our next lecture. Thank you. Have a nice day.